Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 13. In today's lecture we will discuss about linked list. Learning outcomes of today's lecture are that students will be able to explain the difference between arrays and linked list, and then they will be able to perform different operations on a linked list like insertion, deletion in C++. So today in today's lecture we will discuss about lists, arrays and linked list. In linked list we will discuss singly linked list, and then we may also discuss linked list analysis with singly linked list. What is list? A sequence of elements in certain linear order is called a list, like shopping list. In daily life we come across multiple lists. For example, your award sheet is also a list of your marks. Your shopping list is a list to add items of shopping. Similarly, if you go to some organization like bank, in bank the list of customers is also a list. So there are multiple examples of list. Here, there are basic operations that we perform on list, like traversing, searching, insertion, and deletion. In traversing, we simply access the elements of the list, where you navigate your shopping list one by one. मीन्स आप जो है वो आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें आप आइटम्स को वन बाय वन चेक करते हो, वन बाय वन देखते हो, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, एंड सो ऑन. This is traversing. In searching or retrieving, where you start to find out specific item that you want to buy in your shopping list. पूरी लिस्ट में से किसी स्पेसिफिक आइटम को सर्च करना, ढूंढना या देखना कि कौन सा आइटम है जो रह गया है या कौन सा आइटम है जो खास तौर पे आपने परचेज करना है, तो वो सर्चिंग है. इंजर्शन मीन्स इंजर्टिंग न्यू स्टफ टू बाय इन योर शॉपिंग लिस्ट. शॉपिंग के टाइम पे आपको ख्याल आ गया है कि कोई एक ऐसा आइटम है जो मिस कर दिया था आपने घर में लिस्ट बनाते हुए, अब आपने ऐड करना है, तो वो इंजर्शन होगा. इसी तरह से रिमूविंग या डिलीटिंग में वेयर यू स्ट्राइक आउट द थिंग्स दैट यू हैव बॉट. जो चीज़ें आपने ख़रीद ली हैं उनको आपने टिक कर दिया या उनको आपने कट कर दिया, तो इसका मतलब है आपने उन्हें लिस्ट में से डिलीट कर दिया. तो दीज आर द ऑपरेशंस दैट यू मे परफॉर्म ऑन द लिस्ट. What is linked list? Before going into detail about linked list, let us discuss about the pointer. In programming fundamental, you have discussed about pointers. So pointers are the variables that are used to store address of some memory location. I am discussing these pointers because these linked lists are based on pointers. Linked lists are created using pointers. So in order to have good understanding of linked list, you must be able to understand about your you can say pointers. तो पॉइंटर्स क्या हैं? ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये जो पॉइंटर्स होते हैं इनमें मेमोरी एड्रेसेस होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में. तो पॉइंटर्स को जब आपने डिक्लेयर करना होता है तो दीज आर डिक्लेयर्ड जस्ट लाइक सिंपल वेरिएबल्स, लेकिन आप उसके साथ स्टैरिक प्लेस कर देते हैं जो ये बताते हैं कि ये पॉइंटर वेरिएबल्स हैं. तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने से पहले आप डिटेल से पॉइंटर्स को स्टडी करें. In order to discuss about linked list, let us have some limitations about array. अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है. तो कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से जिनको ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया. तो क्या लिमिटेशंस हैं? द अरे साइज इज फिक्स्ड वंस इट इज क्रिएटेड. Changing the size of the array requires creating a new array and then copying all data from the old array to the new array. तो क्या होता है कि array में अगर आप जब उसे डिफाइन करते हैं तो वो फिक्स्ड साइज़ की होती है, लेकिन अगर आपने उसका साइज़ चेंज करना है तो फिर क्या होता है
कि आपको जो है वो रन टाइम के ऊपर आपको उसका साइज आप चेंज करते हैं, अरे का साइज। तो क्या होता है कि फिर आपने अरे का साइज आप चेंज करेंगी और उसमें उसमें आपने जो कि आपके लिए पॉसिबल होता तो है लेकिन टफ हो जाता है, किस तरह से कि आपको रीडिक्लेयर करने पड़ेगी अरे, और फिर पहली वाली अरे का सारा डाटा आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है और मुश्किल बना देता है अरे में डाटा को इंसर्ट करना। Second drawback of array is that data items in the array are next to each other in memory. Inserting an item inside the array requires shifting other items. अभी मैंने आपको बताया कि अरे के एलिमेंट जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में होते हैं। तो अगर आपको कोई डाटा आइटम इंसर्ट करना है, लेट्स सपोज यू हैव एन अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स के बाद आपने एक तीसरा एलिमेंट न्यू इंसर्ट करना है, तो जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं यू विल हैव टू मूव ऑल दीज वन लोकेशन राइट। एक लोकेशन आपको राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को। तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द अरे। इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑल दीज limitations, you discuss about linked list. So linked list is a data structure that overcomes or that removes the limitations of the array. A linked list is a data structure that is introduced to overcome limitations of array and allow easy insertion and deletion. So a collection of nodes storing data items and links to other nodes. तो आपकी अरे लिंक लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन है किसकी? नोड्स की। आपकी लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स होते हैं और हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट डाटा आइटम को स्टोर कराता है, वो डेटा स्टोर करता है जिसको एक्चुअली आपने करना होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो लिंक को स्टोर करता है। So if each node has a data field and a reference field to another node called next or successor, the sequence of nodes is referred to as single linked list. So एक ऐसी लिस्ट जिसमें नोड्स होते हैं और एक नोड उससे अगले नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है, तो वो आपका सिंगल लिंक लिस्ट होता है। नोड्स कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द मेमोरी। नोड्स जो हैं लिंक लिस्ट के जो नोड्स हैं दे आर नॉट कंटिग्यूअस, मेमोरी में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन लिंक्स के थ्रू एक नोड का एड्रेस दूसरे नोड में जब स्टोर कर दिया जाता है तो एक लिंक मेंटेन हो जाता है और उस लिंक के थ्रू आप जो है वो हर एक लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं। द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द हेड एंड द लास्ट नोड इज कॉल्ड द टेल। जो पहला नोड है उसे हम हेड कहते हैं और जो आपकी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है कोई जो भी है उसको आप टेल का नाम देते हैं। An alternative to array-based implementation are linked list structures. A linked structure uses object reference to create links between objects. So recall that an object reference variable holds the address of an object. अभी आपको पहले भी बताया कि आपको पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि आपकी एड्रेसेस को स्टोर कराता है, मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कराता है। तो लिंक लिस्ट भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस स्टोर किया जाता है। Linked lists are dynamic data structure that grow and shrink one element at a time, normally without some of inefficiencies of array. अरे का जो ड्रॉबैक था कि उसमें आप उसके साइज को ग्रो और श्रिंक नहीं कर सकते इजीली, तो बट ऑल दिस कैन बी डन इन लिंक्ड लिस्ट। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज डायनामिक, कि डायनामिकली रन टाइम पे आप लिंक लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको उसमें से एलिमेंट्स को डिलीट करके उसका साइज श्रिंक भी कर सकते हैं। A linked list is a series of connected nodes. You can see from here कि हमने कहा लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है, तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। सीरीज में नोड्स होते हैं, दीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर।
दीज आर द नोड्स, और ये उनके डेटा पार्ट्स हैं ए बी और सी, और ये उनके लिंक पार्ट्स हैं। अब क्योंकि ये नोड्स रे में मेमोरी में स्कैटर्ड होते हैं, दैट्स वाई ये जो आपके एक नोड के बाद दूसरा कौन सा नोड आएगा, वो किस तरह से इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है, बाय प्लेसिंग द लिंक ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द प्रीवियस नोड। We create a new node every time and we add something to the list, and we remove nodes when items removed from list and reclaim memory. Linked list. So linked list has a node, a piece of data, any data type. ये data है, ये पूरा नोड है, नोड के अंदर ये डेटा पार्ट है और ये डेटा पार्ट किसी भी टाइप का हो सकता है। पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, ये पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड है। नेक्स्ट जो आपका इसके बाद जो नोड है वो मेमोरी में कहाँ होगा उसका एड्रेस आपके यहाँ पॉइंटर में डाल दिया जाता है। हेड पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड, दिस इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड हेड, तो फर्स्ट नोड को आप हेड बना देते हैं, समटाइम्स कॉल्ड फ्रंट और फर्स्ट। इस हेड को हम फ्रंट या फिर फर्स्ट भी कहते हैं। और जो लास्ट नोड है लिस्ट का वो नल होता है, क्योंकि लिस्ट का लास्ट नोड है, उसके बाद कोई दूसरा नोड नहीं होता, कोई दूसरा नोड नहीं होगा, दैट्स वाई उसका जो लिंक पाथ है वो उसको हम नल रख देते हैं। अब क्या है कि देयर आर वेरिएशंस ऑफ लिंक लिस्ट, we have different types of linked list, single linked list, double linked list, circular linked list। single linked list में जो आपकी नेक्स्ट होता है नोड, सिर्फ उसका एड्रेस स्टोर किया जाता है, तो नोड में जो लिंक पार्ट होता है वो एक ही होता है और जो कि नेक्स्ट नोड का होता है। डबल लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड होता है उसमें दो लिंक्स स्टोर करवाए जाते हैं, एक नेक्स्ट नोड का लिंक और दूसरा बैक प्रीवियस नोड का लिंक। सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ जो है वो नेक्स्ट नोड का लिंक होता है और एक ही लिंक होता है जो कि नेक्स्ट नोड का है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, दीज आर द नोड्स एंड दीज आर कनेक्टेड विद सिंगल लिंक हैविंग द लिंक ऑफ द नेक्स्ट नोड। This is double linked list, इसमें you can see from here that there are double connections or double links between these nodes। एक जो लिंक है वो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ से देखें, ये एक जो लिंक है ये वाला जो लिंक है ये इसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और इसी नोड का ये वाला जो लिंक है ये इसके प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो डबल लिंक लिस्ट के अंदर हर नोड के दो लिंक्स होते हैं, एक लिंक नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और दूसरा लिंक प्रीवियस नोड को। थर्ड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। इन सर्कुलर लिंक लिस्ट द लास्ट नोड इज यूज्ड टू पॉइंट टू द हेड। तो ये देखिए ये सर्कल बन गया। आमतौर पे क्या होता है कि जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसमें, यहाँ से देखें, जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें जो लास्ट नोड है उसका जो लिंक पार्ट है वो नल है। नल का क्या मतलब है कि ये लास्ट नोड है, लेकिन जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें लास्ट जो नोड है उसके लिंक पार्ट में आप हेड को डाल देते हैं, तो इस तरह से वो सर्कल बन जाता है। देखें लास्ट नोड के लिंक में हमने फर्स्ट हेड का हमने लिंक डाल दिया, तो इस वजह से ये सर्कल बन गया, तो इस वजह से इसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि लिस्ट खत्म हो गई है। सिंगल लिंक लिस्ट में तो हमें पता था कि जब भी किसी नोड का लिंक नल हो जाए तो वो लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन आपके यहाँ पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसमें हमें कैसे पता चलेगा। तो द टिप इज दैट चेक इफ द पॉइंटर ऑफ द करंट नोड इज इक्वल टू द हेड। हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा नोड है क्या उसका पॉइंटर हेड को पॉइंट कर रहा है, अगर तो कर रहा है तो फिर ठीक है, आपका जो है वो दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में फर्दर टू वेरिएशंस होती हैं, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट में एज यू कैन सी देयर आर ओनली वन कनेक्शन बिटवीन द नोड्स, और जो लास्ट वाला नोड है उसका कनेक्शन आपके हेड के साथ होता है। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट में एवरी नोड देयर आर टू कनेक्शंस बिटवीन एवरी टू नोड्स, और जो लास्ट नोड है
उसका कनेक्शन फर्स्ट हेड के साथ और हेड के अंदर कनेक्शन आपके लास्ट वाले नोड का ऐड किया जाता है. Now we discuss in detail about single linked list. A single linked list is a concrete data structure consisting of sequence of nodes. Each node stores element or data and link to the next node. Element हम इसे कहते हैं या हम इसे data कहते हैं और दूसरा इसका part क्या होता है? Link to the next node. This is the element or data or this is the next part that shows the address of the next node. तो ये हमारी linked list है. Now there are different operations that we can perform on list. We can perform insertion, deletion, searching. तो यहाँ पर हमने insertion और deletion को डिटेल से देखना है. इंसर्शन का क्या मतलब है कि हम लिस्ट में कोई न्यू नोड ऐड कर रहे हैं. इफ वी वांट टू ऐड सम न्यू नोड इन द लिस्ट देन वी कैन ऐड अ नोड एनीवेयर इन द लिस्ट. कहाँ कहाँ हम ऐड कर सकते हैं? एम्प्टी लिस्ट में. अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हम वहाँ ऐड कर सकते हैं. बिफोर हेड, आफ्टर टेल एंड इन बिटवीन. यानी हेड से पहले हम ऐड कर सकते हैं, टेल के बाद, और कोई से भी दो नोड्स के दरमियान हम इंसर्ट कर सकते हैं. एम्प्टी लिस्ट केस, अगर हमारे पास लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है तो हम उसमें जब इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि व्हेन लिस्ट इज एम्प्टी विच इज इंडिकेटेड बाय हेड इज इक्वल टू नल कंडीशन, द इंसर्शन इज क्वाइट सिंपल. एल्गोरिथम सेट्स बोथ हेड एंड टेल टू पॉइंट टू द नेक्स्ट न्यू नोड. तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास नोड है जो कि बिफोर इंसर्शन है. आफ्टर इंसर्शन हम जो है वो इसका कनेक्शन क्रिएट कर देंगे. मतलब हमारा ये जो नोड है उसका जो लिंक पार्ट है उसमें हम नल ऐड कर देंगे, डेटा पार्ट में हम उसका डेटा डाल देंगे और इसी को हम कहेंगे कि ये हमारा हेड भी है और टेल भी है. लिस्ट में जब एक ही एलिमेंट होता है तो वही हेड और वही टेल होता है. तो ये एम्प्टी लिस्ट केस है. अच्छा, ऐड फर्स्ट. अगर आपकी लिस्ट में कोई पहले से मौजूद एलिमेंट्स हैं और आपने फर्स्ट पहले एलिमेंट के साथ उससे पहले कोई एलिमेंट ऐड करना है, कोई नोड ऐड करना है, तो आप नोड क्रिएट करेंगे और उसमें फिर क्या करेंगे कि नोड के लिंक में आप हेड का पॉइंटर डाल देंगे, हेड का एड्रेस डाल देंगे और फिर इस न्यू नोड को कह देंगे कि ये हेड है. अब आप क्योंकि लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होता है वही हेड होता है, तो ये फर्स्ट नोड है तो इसे हम कह देंगे ये हेड है. यहाँ से देखिए न्यू नोड जो हमने ऐड किया है उसके लिंक पार्ट में हमने हेड का एड्रेस डाल दिया है, तो ये लिंक क्रिएट हो गया है और उसके बाद हम कहेंगे ये जो न्यू नोड है यही हमारा हेड है. ये एल्गोरिदम है. जब हमने फर्स्ट नोड ऐड करना है हम क्या कहेंगे? नोड डॉट नेक्स्ट हेड. यानी कि नोड जो हमने नया क्रिएट किया है उसके लिंक पार्ट में हम हेड का एड्रेस डाल देंगे और फिर हम कहेंगे हेड इज इक्वल टू वी. यानी वी हमारा नया नोड है. अब हम कहेंगे कि जो हमारा हेड है वो वी है. ये दिस इज द कोड फॉर ऐड फर्स्ट. इसमें हम क्या करेंगे? हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हम क्लास के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बट हेयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग स्ट्रक्चर. तो हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्ट नोड इंट. अच्छा, ये जो नोड है हमारा इसमें दो इसके डेटा एलिमेंट्स हैं. डेटा इंटीजर डेटा टाइप का, ये किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इवन कोई दूसरा स्ट्रक्चर या क्लास भी हो सकता है. और ये जो है नेक्स्ट, ये किस टाइप का होगा? स्ट्रक्ट नोड. अब ये जो नेक्स्ट है आपके नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है ये किसी दूसरे पूरे नोड को पॉइंट कर रहा होता है. पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है ये पॉइंटर टाइप का होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड पॉइंटर हियर, सॉरी स्टैटिक हियर. किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन में जब हम पॉइंटर डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा पॉइंटर बन गया है. और अब ये पॉइंटर है किस टाइप का? क्योंकि इसने किसी भी दूसरे नोड, पूरे नोड को पॉइंट कर रहा होता है तो इस वजह से हमने इसे नोड टाइप का रखा है. अब क्या है कि हम वी विल हैव टू नीड टू यू कैन से नोड्स, हेड एंड टेल, और दोनों नोड टाइप के होंगे, दोनों इनिशियली नल होंगे. इंसर्ट फर्स्ट में हमने क्या करना है? एक पैरामीटर पास करना है जिसको हमने अपनी लिंक लिस्ट में ऐड करना है और इसमें हम न्यू नोड, हमारा एक न्यू नोड होगा. जो नया नोड हम बनाएंगे इसी नोड का नोड टाइप का पॉइंटर होगा और यहाँ हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू इस नोड को क्रिएट करेंगे. दिस न्यू अंडरस्कोर नोड इज अ नोड दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यूली. और ये न्यू जो है ये रिजर्व वर्ड है और ये नोड
जो है ये स्ट्रक्चर है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जब हमने नया क्रिएट करना होता है तो न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम उसे क्रिएट करते हैं। न्यू नोड डेटा इज इक्वल टू न्यू डेटा। अब न्यू नोड जो हम बना रहे हैं उसके डेटा पार्ट में हम ये डेटा डाल देंगे जो यहाँ से न्यू डेटा एज पैरामीटर आ रहा है, और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम हेड दे देंगे, यानी कि न्यू नोड अब पॉइंट कर रहा है किसको, हेड को, और हम क्या कहेंगे, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। अब हमारा जो न्यू नोड है वही हेड बन जाएगा। अब क्योंकि हमारी लिस्ट एम्प्टी थी तो वही वो जो नया नोड हमने बनाया है वही हेड और वही टेल है। तो इस तरह से हम न्यू नोड इंसर्ट करते हैं। लिस्ट के एंड में जब आपने इंसर्ट करना है तो उसका क्या मतलब है, टेल के बाद आपने इंसर्ट करना है। तो ये हमारा न्यू नोड है, ये हम इसके डेटा पार्ट में हमने जो है वो डेटा डाला और इसके नेक्स्ट पार्ट में नल डाला। अब असल काम जो है वो लिंक्स क्रिएट करना है। आप इसको टेल के साथ लिंक करें, तो टेल के लिंक पार्ट में आप इसका एड्रेस डाल दें। ये देखें, टेल के लिंक पार्ट में आपने इसका एड्रेस टेल के लिंक पार्ट में जब डाला तो ये इस तरह से आपका लिंक क्रिएट हो गया। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये अब लास्ट नोड है तो ये टेल होना चाहिए, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारी टेल है, हमारी लिंक लिस्ट की टेल है। एल्गोरिदम इसका क्या होगा कि नोड डॉट नेक्स्ट में नल डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले अपना इंसर्ट किया फर्स्ट नोड के तौर पे। टेल डॉट नेक्स्ट में हम नोड डाल देंगे, टेल जो अभी हमारी थी उसके नेक्स्ट पार्ट में हम नोड डाला, जो नोड का एड्रेस डाला जो नोड अभी हमने क्रिएट किया है, और हम कह देंगे टेल इज इक्वल टू नोड। ये कोड है उसको नया नोड टेल में इंसर्ट करने का, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने हेड से बिफोर इंसर्ट किया है। सिर्फ इसमें हम ये करेंगे कि न्यू नोड जो क्रिएट किया उसमें नल ये हमने पहले किया है, टेल के नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू नोड दे देंगे और हम कहेंगे कि टेल जो है अब हमारी न्यू नोड है। जनरल केस में क्या है कि हमने लिस्ट के अंदर मौजूद कोई से दो नोड्स के दरमियान एक नया नोड इंसर्ट करना है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर ये नया नोड है, दिस इज न्यू नोड एंड वी हैव टू insert this node in between these two nodes having data -1 and 16। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस जो हमारा नोड है इसका लिंक न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे, और इस -1 वाले नोड के लिंक में हम न्यू नोड का लिंक ऐड कर देंगे। यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि यहाँ से ये देखें न्यू नोड के लिंक में हमने ये 16 डाल दिया और ये -1 वाले इसके लिंक में हमने न्यू नोड का लिंक डाल दिया। तो आप ये देखें कि अब ये न्यू नोड इधर इंसर्ट हो गया, ये प्रॉपर लिंक्स क्रिएट हो गए हैं। नेक्स्ट इज डिलीशन। डिलीशन का क्या मतलब है कि हमने लिंक लिस्ट में से कोई सा भी नोड डिलीट करना है। तो यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन वेरी easily. This is very simple operation. A node can be deleted from the end of the list, beginning of the list or from any specified position. जिस तरह से हम इंसर्शन कर रहे थे कहीं से भी आप इंसर्ट और डिलीट करती हैं तो इसी तरह से आप डिलीशन भी परफॉर्म कर सकती हैं। डिलीशन फ्रॉम एंड, एंड से आपने डिलीशन करनी है तो आप क्या करेंगे, यू विल ट्रेवर्स द लिस्ट टू रीच द लास्ट नोड। पूरी लिस्ट को आप ट्रेवर्स करेंगे ताकि लास्ट नोड पे पहुंच जाएं, हेड से स्टार्ट करके टेल तक जाएंगे। ड्यूरिंग ट्रेवर्सिंग असाइन लिंक फील्ड ऑफ सेकेंड लास्ट नोड टू नल एंड देन डिलीट द लास्ट नोड। तो जब आप ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो जो आपका सेकेंड लास्ट नोड होगा उसको उसके लिंक पार्ट में आप लास्ट वाले नोड का जो है वो सॉरी उसके लिंक पार्ट में हम नल डाल देंगे और फिर लास्ट वाले नोड को डिलीट कर देंगे। तो ये जो है ये कोड है डिलीट करने का। आप यू विल नीड PTR मीन्स एक पॉइंटर है या एक नोड है, टेम्परेरी नोड है जो कि आपको चाहिए डिलीट करने के लिए, आप उसे असाइन करते हैं हेड, क्योंकि आपने PTR से स्टार्ट करना है, हेड से स्टार्ट करना है, इस वजह से आपने उसे हेड असाइन किया। और फिर एक और नोड चाहिए प्रीवियस को पॉइंट करने के लिए, उसे भी आप हेड से इनिशियलाइज करें। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अब आपने चेक करना है कि क्या लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। अगर हेड नल है तो इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी है, वी हैव टू वी आर नॉट नीडेड टू डिलीट एनी नोड। तो हम क्या कर देंगे, मैसेज शो करेंगे और रिटर्न कर देंगे। लेकिन एल्स मीन्स देयर आर सम नोड्स, अगर हैं तो हम क्या करेंगे, PTR इज इक्वल टू हेड, वो हम पहले भी असाइन कर चुके हैं। नाउ वी विल ट्रेवर्स द लिस्ट।
लूप लगाएंगे वाइल पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट नल। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल नहीं हो जाता। हम क्या करेंगे? प्रीवियस इज इक्वल टू पीटीआर, प्रीवियस हमारा जो वेरिएबल था उसको हम असाइन करेंगे पीटीआर को, और पीटीआर को हम अपडेट कर देंगे पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। यानी कि अब जो पीटीआर है वो उससे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। पहले पीटीआर हेड को पॉइंट कर रहा था, पहले नोड को पॉइंट कर रहा था। अब जब हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, अब ये पीटीआर इससे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और लूप चले, लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, दोबारा नेक्स्ट पार्ट का जो सॉरी पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो चेक होगा। इफ़ इट इज़ नॉट नल तो फिर आ जाएगा प्रीवियस को पीटीआर दे देगा, पीटीआर को नेक्स्ट मूव कर देगा। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आप लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते। जैसे ही लास्ट नोड आएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लास्ट नोड, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर अब डेटा ऑफ लास्ट नोड का डेटा पीटीआर में मौजूद है और उससे पहले वाला जो सेकंड लास्ट नोड है वो प्रीवियस में है। तो प्रीवियस के नेक्स्ट को नल दे दिया और पीटीआर को डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आपने लिंक लिस्ट में से डेटा को डिलीट किया। इसी तरह से आप स्टार्ट से भी डिलीशन कर सकते हैं और लिस्ट के दरमियान में भी किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द समरी। Let us summarize our lecture. A linked structure uses reference to create links between objects. यानी pointers हमें चाहिए होते हैं। A linked list dynamically grows as needed and essentially has no capacity limitation. जो problems हमारे array में थी वो सारे problems linked list में solve हो गए। The order in which references are changed is crucial to maintain a linked list. अब लिंक लिस्ट को जब आप ट्रेवर्स करते हैं तो आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट को सही तरीके से ट्रेवर्स करने के लिए नेक्स्ट जो भी नोड है या सीक्वेंस में जो नोड आ रहा है उसी का लिंक आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट कैन बी सिंगली, डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट। Each node in a single linked list stores element and link to the next node, and in double linked list stores elements, links to the previous node and links to the next node. In circular linked list, the last node points to the first node of the list, and Java has a linked list class defined as part of the Java collection. यहाँ हम Java तो नहीं करेंगे, हम C++ के साथ करेंगे. So you simply declare an instance of the linked list class and call member methods as required. Thank you so much. If you have any question, you may ask. Allah Hafiz.